Hi everyone, I am Professor Sanjay Bhargav, once again welcoming you to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. In this video, we are going to study about transverse electric and transverse magnetic modes propagating in rectangular waveguide. We'll study about the dominant mode in the rectangular waveguide. We'll study the propagation characteristics of the modes. We'll also study about the degenerate modes and how to select the waveguide dimensions for the dominant mode. We here pick up from transverse electric and magnetic modes. We divide the field configuration within the guide into two sets because either Ez or Hz must exist in a hollow waveguide. In the earlier video we have said that if Ez and Hz both become equal to 0, then all the field components vanish. So here we say we divide the field configuration within the guide into two sets, which makes either Ez or Hz 0. That means out of the two Ez and Hz, one has to exist. So if Hz is equal to 0, it is called transverse magnetic modes. Hz is equal to 0 means there is no component of magnetic field in the direction of propagation. So what will happen? Only the magnetic field components perpendicular to the direction of propagation would exist and hence known as transverse magnetic modes. When Ez is 0, that means the component of the electric field in the direction of propagation would be equal to 0. So the only existing components of the electric field would be perpendicular to the direction of electric field, and therefore the transverse electric modes. In general, waveguide fields may be a combination of these modes. Waveguide के अंदर ट्रांसमिशन होने के लिए जरूरी है कि Hz या Ez में से एक बचे. यदि Hz का मान 0 हो जाता है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स बचेंगे वो केवल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाले बचेंगे, इसीलिए उनका नाम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड. यदि Ez का मान 0 हो जाए, इसका मतलब है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संचरण की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक 0 है, तो केवल जो विद्युत क्षेत्र के घटक बचेंगे यहाँ पर वो संचरण की दिशा के लंबवत वाले बचेंगे, इसीलिए इनका नाम है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड्स. वेवगाइड के अंदर इनके कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं. द वेवगाइड इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू del square E must be equal to gamma square E and del square H must be equal to gamma square H. del square E को हम लिख सकते हैं delta 2 Ez by delta x square delta 2 Ez by delta y square plus gamma square Ez is equal to minus omega square mu epsilon Ez. यहाँ पर इसी प्रकार से Hz का समीकरण लिखा जा सकता है. इनको क्रमशः इक्वेशन संख्या 1 और 2 के रूप में हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया है. अब we will now like to talk about transverse magnetic modes in a rectangular waveguide. Transverse magnetic का मतलब होता है कि Hz must be equal to 0. To find the field configuration of TM waves, we have to solve the wave equation, that is equation number 1 for Ez, and then the field components need to be calculated. तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें वेव इक्वेशन जो समीकरण संख्या 1 के द्वारा व्यक्त की गई है उसका हल प्राप्त करना होगा और उसकी सहायता से हमें दूसरे फील्ड कंपोनेंट्स की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी. माना कि Ez बराबर Ez0 जो कि x और y का फंक्शन है e पावर माइनस गामा z, ये इसके आयाम को व्यक्त करता है और ये इसके प्रोपोगेशन पार्ट को व्यक्त करता है. Ez0 इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. Ez0 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ x एंड y. x इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन एंड y इज अ फंक्शन ऑफ y.
तो यहाँ पर EZ0 को हम x इंटू वाई के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर x केवल x का फंक्शन है और y केवल y का फंक्शन रहेगा। सो इक्वेशन संख्या 4, EZ बराबर x इंटू वाई ई पावर माइनस गामा z। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर y इंटू d2x बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू d2y बाई डी वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एक्स वाई। इस पूरे समीकरण को एक्स वाई से भाग दे दीजिए, डिवाइड द इक्वेशन बाय एक्स वाई। व्हाट डू वी गेट? 1 upon x delta 2 x by delta x square 1 upon y delta 2 y by delta y square is equal to minus gamma square plus omega square mu epsilon is equal to minus h square। अब यहां पर हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो 1 upon x square d2x by dx square is equal to minus kx square, इसको समीकरण संख्या 5। इसी प्रकार से 1 upon y d2y by dy square is equal to minus ky square, इसको इक्वेशन नंबर 6, such that kx square plus ky square is equal to h square। Equation number 5 and 6, so the sinusoidal harmonic variation of x and y, so general equations and general solutions can be written as, जो समीकरण संख्या 5 और 6 हैं, इनको हम साइन हार्मोनिक फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इनके जो हल हैं उनको समीकरण संख्या 8 तथा 8 से व्यक्त किया गया है। x बराबर a1 cos kx इंटू एक्स प्लस b1 sin kx इंटू एक्स। इसी प्रकार से y बराबर c1 cos ky इंटू वाई, d1 बराबर sin ky इंटू वाई। यहाँ पर a1, b1, c1, d1 are constants which will be calculated from the boundary conditions like Et and Hn is 0 at the metal surface. Ez is equal to 0 at x is equal to 0 and x is equal to a। ये हमारे लिए बाउंड्री कंडीशन है। इसका मतलब है the tangential component of the electric field is continuous. Similarly, the normal component of the magnetic field is continuous at the metal surface। तो इक्वेशन 7 और 8 को इन इक्वेशन 1, तो पूरा सॉल्यूशन हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, a1 cos kx इंटू एक्स प्लस b1 sin kx इंटू एक्स, और ये c1 प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया हमने, c1 cos ky इंटू वाई प्लस d1 sin ky इंटू वाई ई पावर माइनस गामा z। इसमें x इज इक्वल टू 0 रखने पर ez का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो ez की जगह 0, sin 0 वुड बी 0, इसलिए ये वाला टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पर a1 प्लस 0 इंटू दिस फंक्शन ई पावर माइनस गामा z का मान 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब कांस्टेंट a1 बराबर 0। तो पहली बाउंड्री कंडीशन को लगाने से कांस्टेंट a1 का मान 0 आ जाता है। अतः ez अब कितना बचेगा? b1 sin kx इंटू एक्स, c1 cos ky इंटू वाई प्लस d1 sin ky इंटू वाई ई पावर माइनस गामा z। अब x बराबर a पर भी ez का मान 0 है, तो Ez बराबर 0 sin kx इंटू a, तो sin kx इंटू a कैन बी रिटन एज sin ऑफ m पाई। सो kx a बराबर m पाई, इसीलिए kx की वैल्यू हम लिख सकते हैं m पाई अपॉन a, समीकरण संख्या 9 के रूप में। Similarly, Ez will be equal to 0 at y is equal to 0 and y is equal to b। y is equal to 0 को रखने पर b1 sin kx इंटू एक्स, c1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से दूसरा कांस्टेंट c1 का मान भी 0 आ जाता है। इसी प्रकार से y बराबर b रखने पर b1 sin kx इंटू एक्स, d1 sin ky इंटू b इज इक्वल टू 0। sin ky इंटू b का मान 0 है, अर्थात बराबर है sin n पाई के, तो ky b इज इक्वल टू n पाई। इसका मतलब ky का मान n पाई अपॉन b के बराबर रखा जा सकता है। इससे क्योंकि दो कांस्टेंट a1 और c1 0 आ गए, तो यहां पर नया पूर्ण समीकरण जो लिखा जा सकता है हल, वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, Ez बराबर b1 d1 साइन ऑफ kx इंटू एक्स साइन ऑफ ky इंटू वाई ई पावर माइनस गामा z। माना कि कांस्टेंट b1 d1 को एक नए कांस्टेंट a के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जो हमारे फील्ड के एम्पलीट्यूड को परिभाषित करेगा। तो Ez बराबर लिख सकते हैं हम a साइन
kx की वैल्यू हमने निकाली थी m पाई अपॉन a, इसी प्रकार से ky का वैल्यू निकाला था n पाई अपॉन b। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 11 हमारे लिए Ez के समीकरण को व्यक्त करता है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन संख्या 11 की सहायता से हम फील्ड कंपोनेंट्स ज्ञात कर सकते हैं। फील्ड कंपोनेंट्स ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने फर्स्ट वीडियो में लिखा था कि hx, hy, ex और ey आपके hx और hz पर निर्भर करते हैं। क्योंकि यहां पर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की बात हो रही है, hz का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास hx में बचेगा j ओमेगा एप्सिलॉन h स्क्वायर डेल्टा ez बाई डेल्टा y। इस समीकरण में Ez का मान प्रतिस्थापित करिए तो आपको प्राप्त होगा j ओमेगा एप्सिलॉन बाई h स्क्वायर a ky साइन kx इंटू एक्स कॉस ky इंटू y e पावर माइनस गामा z। इसी प्रकार से hy माइनस j ओमेगा एप्सिलॉन h स्क्वायर e डेल्टा ez बाई डेल्टा x, x के सापेक्ष अवकलन ez का, तो हमें मिलेगा माइनस j ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन h स्क्वायर a kx cos kx इंटू एक्स साइन ky इंटू y e पावर माइनस गामा z। इसी प्रकार से आप ex और ey ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर kx का मान पता है हमें, ky पता है, हमें पता है h स्क्वायर बराबर है kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर। यहाँ पर m का मान 1 2 3 से अनंत तक, इसी प्रकार से n का मान 1 2 3 से अनंत तक लिया जा सकता है। जो 4 इक्वेशन हमको प्राप्त हुई हैं 12a से लेकर 12b तक, उनसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द फील्ड्स शो स्टैंडिंग वेव कन्फिगरेशंस along transverse direction x and y. Since integers m and n representing the half wave variation may take infinite number of values, so we have double infinite modes. Each corresponds to a certain value of propagation constant beta and is called a mode. यहाँ पर जो फील्ड है वो स्टैंडिंग वेव कन्फिगरेशन x और y डायरेक्शन में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इंटीजर्स m और n क्या बताते हैं, हाफ वेरिएशंस, जिसका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेके अनंत तक। इसीलिए हमारे पास डबल इंफिनिटी के 2 मोड्स प्राप्त होते हैं। Each corresponds to a certain value of propagation constant beta, और हर एक को हम एक मोड के रूप में परिभाषित करते हैं। For m is equal to n is equal to 0, all field components vanish, and that is why TM00 mode is not possible. देखिए, यदि m और n दोनों को शून्य रख दिया जाए तो m को शून्य करने से kx 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। n को 0 करने से साइन ky 0 हो जाएगा, इसलिए ये वाला मोड भी 0 हो गया। यहाँ पर भी साइन ky आता है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन kx के कारण 0 हो जाएगा। इसका मतलब है m और n दोनों को एक साथ शून्य करने पर कोई भी मोड बचेगा ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं TM00 मोड पॉसिबल नहीं है। If any of one of these, say m is equal to 0 or n is equal to 0, then also fields vanish. So TM0n and TM0 modes not possible. Let us check. देखिए, अब हम m को 0 करते हैं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो, ये 0 हो गया साइन ky के कारण, ये भी 0 हो जाएगा साइन ky के कारण, ठीक है ना। तो यहां पर चारों मोड आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2 जगह ky यहां पर आ गया और 2 जगह यहां पर आ गया। इसी तरह से आप n को 0 करेंगे तो साइन kx के कारण ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहां पर kx आने के कारण ये भी 0 हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहां पर कहा है कि यदि m और n में से एक एक करके भी शून्य करें तो भी सारे फील्ड कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। इसीलिए हमने कहा है 0m और m0 मोड्स यहां पर पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली m and n can take negative values, but these do not correspond to new solution, so we don't consider them negative values. m और n के यहां पर ऋणात्मक मान लिए जा सकते हैं, पर इनसे कोई नया सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसीलिए हम m और n के ऋणात्मक मानों को नहीं लेते हैं।
Now, transverse electric modes in rectangular guides. To find the field configuration of TE modes, we have to solve the wave equation 2 for Hz and then find the field components as before. अगर मुझे TE मोड्स निकालने हैं तो मुझे H की वाली वेव इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा. डेल्टा 2 Hz by डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 Hz by डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर Hz इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Hz. Hz का वैल्यू हम यहां पर इस प्रकार से चुन सकते हैं. Hz0 फंक्शन ऑफ x एंड y e पावर माइनस गामा z. Hz0 इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, इसीलिए Hz0 को लिख सकते हैं x इंटू वाई, जहां पर x केवल x का फंक्शन है और y केवल पूर्व की भांति y का फंक्शन है. इसीलिए Hz को लिख सकते हैं एक्स वाई ई पावर माइनस गामा z. इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज करने पर y d2x by dx square similarly plus x d2y by dy square plus gamma square xy is equal to minus omega square mu epsilon xy. दोनों तरफ xy से भाग देने पर you can divide both sides by xy. 1 upon x delta 2x by delta x square plus 1 upon y delta 2y by delta y square minus omega square plus gamma square omega epsilon is equal to minus h square. वेरिएबल सेपरेट करने पर 1 upon x delta 2 by delta x square is kx square and similarly minus 1 upon y delta 2y by delta y square is minus ky square, such that kx square plus ky square is equal to h square. Equation number 3 and 4 show the sinusoidal harmonic variation of x and y, so the general equations can be written as. तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 का सामान्य हल इस प्रकार लिखा जा सकता है. x बराबर a1 cos kx प्लस b1 बराबर sin kx into x, y बराबर c1 cos ky into y प्लस d1 sin ky into y. a1, b1, c1 and d1 are constants which will be calculated from the boundary conditions. यहां पर भी 4 कांस्टेंट हैं a1, b1, c1, d1 जिनका मान पूर्व की भांति बाउंड्री कांस्टेंट से कंडीशन से निकाला जाएगा. Ex बराबर 0, delta hz by delta y at y is equal to 0 and b would be 0. That is derivative of z hz vanishes. Similarly, Ey is equal to 0 or delta hz by delta x at x is equal to 0 and a will also be 0. At the metal boundaries, x is equal to 0 and x is equal to a, y is equal to 0 and y is equal to b. From equation number 5 and 6, तो हम hz का पूरा वैल्यू लिख सकते हैं. ये x और ये y और e पावर माइनस गामा z. ये x को प्रदर्शित करता था, ये y को प्रदर्शित करता था. दोनों हल को एक साथ यहाँ पर लिखकर हम समीकरण संख्या 7 द्वारा पूर्ण हल को व्यक्त कर सकते हैं. अब इसका अवकलन डेल्टा hz बाई डेल्टा x करिए. तो यहाँ पर माइनस के एक्स a1 साइन के एक्स इंटू एक्स प्लस b1 के एक्स कॉस के एक्स इंटू एक्स, और इसके अवकलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. e पावर माइनस गामा z. x का मान अगर शून्य रख दें तो डेल्टा hz बाई डेल्टा x का मान भी शून्य होगा. तो यहां पर 0 प्लस b1 इज इक्वल टू 0, इससे कांस्टेंट b1 का वैल्यू 0 आ गया. x इज इक्वल टू a पर भी डेल्टा hz बाई डेल्टा x का मान शून्य आएगा. अतः साइन के एक्स इंटू a मस्ट बी इक्वल टू 0. तो साइन के एक्स ए मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ एम पाई. साइन के एक्स ए मस्ट बी इक्वल टू एम पाई. तो यहां से के एक्स का वैल्यू हमारे पास आता है एम पाई अपॉन ए. डेल्टा hz बाई डेल्टा y इज इक्वल टू a1 cos kx इंटू एक्स प्लस b1 साइन kx इंटू एक्स. इसका अवकलन करिए माइनस c1 ky इंटू साइन ky इंटू वाई प्लस ky d1 cos ky इंटू वाई e पावर माइनस गामा z. y इज इक्वल टू 0 पर डेल्टा hz बाई डेल्टा y का मान भी शून्य हो जाएगा. अतः कांस्टेंट d1 आपको 0 मिल जाएगा. y बराबर a पर साइन ky इंटू ए इज इक्वल टू 0 साइन ऑफ n पाई. सो ky a इज इक्वल टू n पाई. तो यहां से ky का मान n पाई इंटू a. तो परिणामी समीकरण जो हमें प्राप्त होगा a1 c1
कॉस के एक्स इंटू एक्स कॉस के वाई इंटू वाई ई पावर माइनस गामा जेड। यहाँ पर a1 c1 के स्थान पर अपन b लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। अतः hz का मान आपके पास में आ जाएगा b cos kx cos ky e पावर माइनस गामा z। kx का वैल्यू m पाई अपॉन a, ky का वैल्यू n पाई अपॉन b। अब यहां से हम फील्ड इक्वेशंस ज्ञात कर सकते हैं। तो hx का मान माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा एच जेड बाई डेल्टा एक्स, तो गामा अपॉन एच स्क्वायर बी के एक्स साइन के एक्स कॉस के वाई वाई ई पावर 9a आ जाएगा। इसी प्रकार से एच वाई ज्ञात करेंगे, ई एक्स ज्ञात करेंगे, ई वाई ज्ञात करेंगे। के एक्स का वैल्यू एम पाई अपॉन ए, के वाई का वैल्यू एन पाई अपॉन बी, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज एच स्क्वायर। इक्वेशन 9 से a से लेकर 9d तक हमें क्या व्यक्त करते हैं? यहां पर भी हम देखते हैं कि m और n दोनों को जीरो करने पर सारे फील्ड कंपोनेंट्स जीरो हो जाते हैं, इसीलिए TE00 भी यहां पर संभव नहीं है। अब m और n में से एक एक को जीरो करके देखते हैं, तो यहां पर TEM0 और TE0n पॉसिबल हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए m का वैल्यू जीरो रखें तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, पर ये दो बच जाएंगे। इसी प्रकार से n का वैल्यू जीरो रखें तो यहां पर दो जीरो हो जाएंगे और दो बच जाएंगे। इसका मतलब है TE हमारे पास M0 और 0n दोनों बचेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम डोमिनेंट मोड किसको बोलेंगे? द लोवेस्ट ऑर्डर मोड हैविंग लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डोमिनेंट मोड। सिंस TM0n and TM0 are not possible, but TEM0 and TE0n are possible, तो TE10 and TE01 have lower order। पर इनमें से कौन सा डोमिनेंट मोड होगा उसको डिसाइड करने के लिए हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की मदद लेनी पड़ती है। जो रिलेशन फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो यहां से FC बराबर 1/2 पाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ m अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन b का होल स्क्वायर। 10 के लिए आप रखेंगे तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 अपॉन a का स्क्वायर 1/2a अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। इसी प्रकार से TE01 में तो 1/2b अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। अब यहां पर आप खुद देखिए FC अपॉन FC TE01 का रेशियो अगर निकालेंगे तो a अपॉन b, क्योंकि a का मान b से अधिक है, इसीलिए FC TE01 का मान FC TE10 से अधिक है। इसका मतलब न्यूनतम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी TE10 मोड के लिए प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसको डोमिनेंट मोड कहते हैं। TE10 इज द डोमिनेंट मोड। इसके फील्ड कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। द फील्ड कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 9a to 9d। यहां पर m का वैल्यू 1 रखना है, n का वैल्यू 0 रखना है। तो kx बराबर आपके पास था m पाई अपॉन a और ky का वैल्यू था n पाई अपॉन b। तो hz यहां पर रहेगा हमारे पास में b cos पाई x अपॉन a e पावर माइनस गामा z। इसी प्रकार से hz बराबर आएगा, ये है hx बराबर गामा b अपॉन एच स्क्वायर पाई अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए ई पावर माइनस गामा z। यहाँ पर एच वाई 0 हो जाएगा, ई एक्स 0 हो जाएगा, ई जेड 0 हो जाएगा, और ई वाई का वैल्यू आप रख सकते हैं माइनस जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर पाई अपॉन ए बी साइन पाई एक्स अपॉन ए ई पावर माइनस गामा z। यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी v अपॉन 2a, कट ऑफ वेवलेंथ 2a, h का वैल्यू पाई अपॉन a इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा c इज इक्वल टू कट ऑफ वेव नंबर kc।
The cutoff frequency of TE10 mode is independent of dimensions B of the waveguide. ठीक है ना, तो यहां पर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है TE10 मोड की, जिसको हमने डोमिनेंट मोड का है, वो हमारे वेवगाइड के डायमेंशन B पर किसी भी प्रकार की निर्भरता को प्रदर्शित नहीं करता है. नाउ प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम करनी है जो TE और TM मोड के लिए समान है. The propagation constant gamma is equal to alpha plus j beta is a complex number. अल्फा क्या है? अटेन्युएशन कांस्टेंट. क्या बताता है? अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ. एंड बीटा इज द फेज शिफ्ट कांस्टेंट, दैट इज चेंज ऑफ फेज पर यूनिट लेंथ. इफ गामा इज रियल and beta is 0, then there is no phase shift along the waveguide and there will be no wave motion at low frequencies. As the frequency is increased for a particular frequency, omega is equal to omega c, gamma becomes 0. For all values of frequency omega greater than the omega c, the propagation constant gamma will be imaginary and has the form gamma is equal to j beta. Here alpha is 0, so there will be wave propagation without attenuation. यदि ओमेगा का फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ से कम है तो कोई वेव प्रोपोगेशन नहीं होगा. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी है तो भी वहां पर गामा बिकम्स 0. और जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से अधिक हो जाएगा तो वहां पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा का मान इमेजिनरी हो जाएगा और इस परिस्थिति में अटेन्युएशन कांस्टेंट अल्फा 0 होगा और इसीलिए वेवगाइड में वेव प्रोपोगेशन होगा और वो भी बिना अटेन्युएशन के. किसी भी प्रकार का लॉस देखने को नहीं मिलेगा. द प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, that is equal to अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. और एच स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन गामा इज इमेजिनरी. गामा इज इक्वल टू जे बीटा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एच स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एच स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन m pi upon a का square plus n pi upon b का whole square. So there is a lower limit to the frequency for the waves to propagate in a waveguide of given dimensions a and b. तो कौन सा वेव प्रोपोगेट होगा ये किस बात पर निर्धारित होगा? वेवगाइड की डायमेंशंस a और b के आधार पे होगा. जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम लिखते हैं ओमेगा सी और उसको हम कितना लिख सकते हैं? ओमेगा सी बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ m पाई अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस n पाई अपॉन b का होल स्क्वायर. तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका इक्वेशन यहां से आ जाएगा. दिस इज द इक्वेशन फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी होने पर कोई प्रोपोगेशन नहीं होगा. और ओमेगा सी का मान कौन निर्धारित करेगा? a और b, दैट इज डायमेंशंस ऑफ द वेवगाइड. सो जैसी डायमेंशंस का आप वेवगाइड सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निर्धारित होगी और इसी से आपकी कट ऑफ वेवलेंथ भी निर्धारित होगी. v बराबर आपके पास में इक्वेशन होता है n लैम्डा ना, इसको मैं यहां पर f लैम्डा लिख देता हूं. तो यहां से लैम्डा का मान v बटा f लिखा जा सकता है. तो कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ सी, 1 अपॉन ओमेगा म्यू 1 अपॉन एफ सी और एफ सी का मान हमारे पास यहां पर है. तो यहां से हम के सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. कट ऑफ वेव नंबर, एक हो गया हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हो गई हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ और तीसरा हमारे पास हो गया कट ऑफ वेव नंबर 2 पाई अपॉन लैम्डा सी एंड दैट इज इक्वल टू एच. फेज शिफ्ट कांस्टेंट बीटा के मान को भी निर्धारित कर सकते हैं. बीटा बराबर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर. इससे हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस एन पाई अपॉन बी का
होल स्क्वायर। फेज वेलोसिटी वीपी बराबर ओमेगा अपॉन बीटा, तो ये हमारी फेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर सी का स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, दैट कैन बी रिटन एज वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ का होल स्क्वायर। इफ वीपी इज ग्रेटर देन वी, free space velocity, then and therefore it is not the velocity with which every energy propagates. As the frequency increases, Vp decreases and finally approaches free space velocity. The guide wavelength is given by lambda g is equal to Vp upon f, that is V upon f अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लेमडा बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर। यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया है हमने विच शोज द वेरिएशन ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट विद फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे आपने फेस कांस्टेंट या प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकाला है, और जैसे जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आप आगे चलते हैं तो आपका एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बीटा का वैल्यू आपके पास में 0 है। At extremely high frequencies, it asymptotically approaches free space propagation beta 0, which is equal to omega upon under root mu epsilon. So ये आपका free space propagation constant। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए भी प्रोपोगेशन का मान, प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा का मान लगभग बीटा 0 के बराबर हो जाता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर बीटा का मान 0 है। अब हमारे को मालूम करना है कि हम डीजेनरेट मोड्स किसे कहते हैं। डीजेनरेट मोड्स और उनका सिलेक्शन, या हम वेवगाइड के डायमेंशंस का सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक मोड्स का सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो हम उन्हें डीजेनरेट मोड्स कहते हैं। When 2 or more modes have the same cutoff frequency, they are said to be degenerate modes. In rectangular waveguide, TEMN and TENM are always degenerate. In a square waveguide, TEMN, TENM, TMMN and TMNM make a foursome of degeneracy. चारों का सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। अब क्वेश्चन आता है हम वेवगाइड डायमेंशंस का सिलेक्शन कैसे करते हैं। द वेवगाइड डायमेंशंस आर सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट डीजेनरेट मोड्स कैन बी अवॉइडेड। फॉर एग्जांपल, if a rectangular waveguide has dimension A is equal to 2b, then TE10 is the dominant mode with cutoff wavelength lambda c is equal to 2a. The cutoff wavelength for the next higher mode TE01 and TE20 shall be same. These are called as degenerate modes. Thus, the allowed frequency band for operation of rectangular waveguide with A is equal to 2b shall be V upon 2a, should be less than F, should be less than V upon A. तो अगर हम अपने वेवगाइड डायमेंशंस का सिलेक्शन A बराबर 2b करते हैं तो कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड परमिसिबल होंगे? V अपॉन 2a लेस देन F लेस देन V अपॉन A। देखिए इस फिगर के अंदर the figure shows the cutoff frequency spectrum and degenerate modes for a rectangular waveguide with the dimensions A is equal to 2b। ये एक ही मोड है, इन दोनों का आवृत्ति समान है इसलिए ये दोनों डीजेनरेट हैं। यहाँ पर ये दोनों डीजेनरेट हैं, यहाँ पर ये दोनों डीजेनरेट हैं, ये दोनों डीजेनरेट हैं। तो TE10 और TE02 ये दोनों, इनको अगर छोड़ दें तो इनके अलावा सभी मोड्स डीजेनरेट हों। नॉन डी, ये तो दो नॉन डीजेनरेट हैं और इसके अलावा सभी मोड्स यहां पर डीजेनरेट मोड्स कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टीएम और टीई मोड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सही समय पर मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।